मतलब क्या होता है? What is the meaning when we say that this disease caused by a pathogen? Yes, caused by a pathogen. Can spread. Yes, can spread. It is contagious. It is infectious. So the causative agent is bacteria, which is Diplococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae. Or it can also be, this is also called Streptococcus. Actually, Streptococcus is a diplococci, दो कोकाई साथ में, so it is, the actual name is Streptococcus pneumoniae, and it is also called Diplococcus pneumoniae. This is the causative agent. It is also caused by fungus, that is mycoplasms, or एक bacteria, that is Haemophilus influenzae. So these causative agents of pneumonia are MCQs for you. So these are bacteria. Okay, bacteria is written. This is a fungus, and it can also be caused by viruses. Alright, so pneumonia, it is a disorder of the respiratory tract. It infects the alveoli of lungs. It infects the alveoli of lungs, and the alveoli, they get filled with water. So if the alveoli, they get filled with water, then they cannot do the process of exchange of gases. Alright, so अगर ये हमारे alveoli हैं, this is one, if this is the alveoli, then pneumococci will come and sit over here. So this is Streptococcus pneumoniae. And because of this Streptococcus pneumoniae, inflammation हो जाएगा alveoli का. So inflammation में exudate release होगा. Exudate will be released, so the alveoli will be filled with this exudate, with this fluid. Ma'am, can you scroll a little bit up? Yes. Ma'am, exudate is released by body or by the bacterial body? By the bacterial body also, and the body's mechanism also against the bacteria. Okay, so both release Yes. exudate. Yes. यहाँ पे WBCs भी आ जाएंगे. Why WBCs will come? To fight the pathogen. Yes, to fight the pathogen. So alveoli, they will be filled with this exudate. They will be filled with WBCs, जो hamper करेंगे exchange of gases को. So alveoli will be filled with fluid. Plus there will be some WBCs which will reach the site of inflammation. So exchange of gases का जो हमारा काम है, gaseous exchange, it is hampered. Gaseous exchange is hampered. All these points you will see in MCQs with the pneumonia. That gaseous exchange is hampered because the alveoli are filled with fluid. There may be WBCs also which will be seen at the site of inflammation. And because the air gaseous exchange is hampered, there will be oxygen deficiency in the body. अगर हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा. ब्लड विल हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, सो ब्लूइश अपीयरेंस मिलेगा स्किन को. Bluish appearance of skin. Because the deoxygenated blood, it has that bluish tinge. It is not fresh and red like the arterial blood. So if blood is having more and more carbon dioxide, the skin will have a bluish tinge. It will have a bluish color, जिसको हम बोलते हैं cyanotic appearance.
cyanotic appearance. We say कि pneumonia के patients का appearance is cyanotic. They have a cyanotic appearance. It is definitely a disease of lower respiratory tract because lungs तक पूरा infect हो रहा है. The spread. How does it spread now? कैसे spread हो सकता है pneumonia? बोलो. Through air droplets. Yes, droplet infection. Infected person ने अगर sneeze किया तो droplet infection से spread होगा. It will be airborne. Even by sharing glasses, okay, and utensils with the infected person, it can spread. Sharing glasses and utensils with infected person. ऐसे स्प्रेड को हम कौन सा स्प्रेड बोलते हैं? बोलो. What kind of spread it is called? Yes? Communicable. Okay. बट ऐसे चीजों के थ्रू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Contamination. ओके, कंटैमिनेटेड. और क्या? फोमाइट स्प्रेड. हैव यू हर्ड ऑफ दिस? Yes, ma'am. मतलब कोई भी चीजों पे भी हाथ लगाया वो पर्सन ने. यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड इन रिलेशन टू कोविड. ऑलराइट, फोमाइट स्प्रेड. इन्फेक्टेड पर्सन ने जो जो चीज़ों को हाथ लगाया है उसको अगर किसी दूसरे पर्सन ने हाथ लगाया तो वहां से भी इन्फेक्शन हो जाएगा. चलो, सो दिस इज अबाउट निमोनिया. व्हाट विल बी द सिम्टम्स? व्हाट डू यू थिंक विल बी द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया? Difficulty in breathing. Yes, difficulty in breathing. What else? Cough. Cyanotical appearance. Yes, Ma'am, cyanotic could you scroll a appearance. little up? Yes, cyanotic appearance. और क्या? Ma'am, a red patch on the lung. रेड पैच ऑन द लंग. ओके, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो दिख सकता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग विथ म्यूकस. ये जो लिक्विड, ये जो एक्सुडेट लंग्स में आएगा वो बाहर आने का ट्राई करेगा. बॉडी विल ट्राई टू एक्सपेल इट आउट. सो कफ विथ म्यूकस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ accompanied with fever and chills. All this will be seen in pneumonia. So we will just write it down. Cough with mucus, shortness of breath, chest pain because the breathing is difficult. So chest pain, inflammation of the lungs. अगर lungs का हम surface देखेंगे तो accompanied with fever, with chills. All this will be seen in pneumonia. Ma'am, Yes. cyanotic appearance एकदम extreme cases में ही होता है या फिर usual में भी होता है? एकदम एक्सट्रीम केसेस में ही होता है साइनोटिक अपीयरेंस. चलो, क्या ट्रीटमेंट देंगे? व्हाट ट्रीटमेंट कैन बी गिवन? Antibiotics. Okay, because it is bacterial, we will give antibiotics. What else? Because the body has more CO2, then we'll give the person pure oxygen. Yes, oxygen can be administered. In severe cases, हम artificially oxygen दे सकते हैं. Next, aspiration of the fluid from the lungs with the help of a needle.
वी जस्ट वांट टू क्लियर दिस फ्लूइड फ्रॉम द लंग्स, और फिर स्ट्रेप्टोकॉकस के लिए हमको एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है सो दैट इट कैन किल दोज पैथोजेंस. This fluid should be aspirated so that lungs are empty again for the exchange of gases. So aspiration of fluid with a needle will restore the conditions back. It is a treatable disease. ऐसा नहीं है कि इसका treatment नहीं है. It can very nicely be treated. Right? मैम Yes. मैम पैरासिटामोल क्या करता है? Paracetamol. Paracetamol is an antipyretic agent. What is pyrrhea? Do you know what is pyrrhea? Antipyretic Fever. means fever को कम करता है. Yes. Increased body temperature को कम करता है paracetamol. ओके. Okay? चल. So यहाँ पे हम ये भी लिखते हैं कि बॉडी को फटीग हो जाएगा. Now obviously low oxygen conditions हैं तो बॉडी को फटीग, बॉडी will not feel that much energetic. And also this bluish appearance will be first seen on the nails पे, lips पे सबसे पहले manifest करता है वो cyanotic appearance with which the doctor can recognize fast. अगर nails bluish दिख रहे हैं, lips bluish दिख रहे हैं, सो थोड़ा जल्दी हिंट मिलता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कफ है, विथ म्यूकस है, विथ स्पूटम है. राइट. जब हम एक्सरे लेंगे लंग्स का तो वी कैन सी दोज हैवी लंग्स विच आर इन्फ्लेम्ड. सो ऑल दिस इज विथ निमोनिया. द नेक्स्ट वन विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इज डिप्थेरिया. Now, what is the causative agent for diphtheria? What is the causative agent for diphtheria? बोल. हाउस फ्लाई? नहीं, Bacteria. it's a bacteria, yes. नहीं, ओके, पॉजिटिव एजेंट. हाँ, and the bacteria का नाम है Corynebacterium diphtheria. I think ये names आपको होंगे पहले भी. Corynebacterium diphtheria is the causative agent. Again, the transmission or the spread is through airborne and droplet. Symptoms now over here will be inflammation of nasal mucosa. जो नोज का पाथवे पूरा ब्लॉक करेगा. एंड देयर विल बी ब्लॉकेज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. Usually children under the 5 years of age, children under or less than 5 years of age are affected by this Corynebacterium diphtheria, क्योंकि तब बॉडी की इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहती है टू फाइट अगेंस्ट दिस. हम जो ये वैक्सीनेशन लेते हैं DPT, डू यू नो उसमें डी का क्या फुल फॉर्म है? DPT, diphtheria. Yes. And P का pertussis और T का tetanus. DPT is a combination of diphtheria, pertussis and tetanus which is given to every child so that ये diphtheria ना हो. It is a prophylaxis. Vaccination क्या है? Preventive treatment है. Preventive treatment को हम बोलते हैं prophylaxis. Prophylaxis is preventive treatment. We will speak of all this. What is prophylaxis? What is preventive treatment? What are communicable, non-communicable diseases in the chapter of human health and diseases. But because ये वाली diseases respiratory tract को, nasal mucosa को, lungs को affect करती हैं, we are speaking of them over here also. मैम, Yes.
मैम पी का क्या बताया? Pertussis. Pertussis. That is my next disease which is to be discussed over here. Pertussis. The third one in this list. So pertussis का causative agent है Bordetella pertussis. Again a bacteria. ये याद रहते हैं causative agents because with the disease वो नाम है बैक्टीरिया का. जैसे diphtheria is with Corynebacterium diphtheria. Pertussis is with Bordetella pertussis. Pneumonia is with Streptococcus pneumoniae, Diplococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. So causative agents याद रहते हैं. Again this is airborne and droplet infection से spread होगा. Symptoms. Same. In this also thick mucus deposition will be seen in the respiratory tract because of this bacteria. Thick mucus deposition in the respiratory tract. जिससे फिर से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा. Whooping sound will be produced during breathing. Heavy breathing, difficulty in breathing. The other name to pertussis is whooping cough. Forced breathing with this whooping sound. So it is also called whooping cough. ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया. एंड प्रोफाइलैक्सिस में अगेन डीपीटी वैक्सीन विच इज एडमिनिस्टर्ड. सबको दी हुई रहती है ये डीपीटी वैक्सीन. चलो नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड. क्या पॉजिटिव एजेंट होता है कॉमन कोल्ड का? नो. बिफोर कॉमन कोल्ड लेट अस डू दिस. ट्यूबरकुलोसिस. सो द फोर्थ वन ट्यूबरकुलोसिस. शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीबी. यू ऑल नो कि ट्यूबरकुलोसिस में भी हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग अफेक्ट होता है पर्सन का. ओके, चेस्ट पेन रहता है, पर्सिस्टेंट कफ रहता है. ये तो हमने सुना ही है कि टीबी का पेशेंट खांसता रहता है पूरा टाइम. दिस पर्सिस्टेंट कफ. चलो, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? Infection through what? All these are infectious diseases. Mycobacterium tuberculosis. Yes, correct. Mycobacterium tuberculosis. Again a bacteria. नाम में ही है Mycobacterium tuberculosis. Again a bacteria. Who had discovered this Mycobacterium tuberculosis? Discovered by? बोल. Robert Koch. I think you have this. Koch's postulates नहीं है आपको? 10th में नहीं थे? No, ma'am. Okay. 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 So spread again is through direct contact. It is through droplet infection. Symptoms. Persistent cough.
जिसको हम क्रोनिक कफ भी बोलते हैं. द कफ इज क्रोनिक. क्रोनिक मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रहा है. चेस्ट पेन. bloody sputum. Now why bloody sputum? स्पूटम में ब्लड क्यों मिलेगा म्यूकस के साथ साथ? मैम कफिंग की वजह से रेस्पिरेटरी मैम ट्रैक्ट फोर्सफुल होगा वो. करेक्ट. थ्रोट के ब्लड वेसल्स in this neck and throat region, throat blood vessels, they get ruptured due to long chronic coughing. सो वो ब्लड वेसल्स, वो कैपिलरीज रप्चर होने की वजह से थोड़ा सा ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाएगा स्पूटम में. अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्रोनिक रहा एंड इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, ट्रीटमेंट मिल गया अर्लियर स्टेजेस पे ही, तो ये ब्लडी स्पूटम वाली स्टेज अवॉइड हो सकती है. बट इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, खांसी रहें तो स्पूटम के साथ ब्लड भी आना चालू हो जाएगा. चेस्ट पेन अगेन बिकॉज डिफिकल्टी होगा ब्रीदिंग में. चलो, ट्रीटमेंट इज अगेन एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इट इज़ 100% क्यूरेबल. ऐसा नहीं है कि क्यूरेबल नहीं है, बट जितने अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होगा उतना बेटर है. एंड द ट्रीटमेंट इज लॉन्ग. एक बार इसने इन्फेक्ट कर दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने, सो द ट्रीटमेंट, द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज लॉन्ग. प्रोफाइलैक्सिस में हम लोगों ने सबने ली हुई है BCG वैक्सीन. BCG. You all must be knowing that you all have been given this BCG vaccine. Okay, तो उसमें ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट क्योर रहता है. We are already given this BCG vaccine. What is the full form of BCG? Bacterium curium something. Bacillus calamit. Actually, this is the name of the scientist who had given this BCG vaccine. Bacillus calamit guerin. ये यहाँ पे नहीं है आपको, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस ऑल्सो बिकॉज दिस इज देयर इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर. वहाँ पे BCG का फुल फॉर्म है. चलो, नेक्स्ट लेट अस कम टू कॉमन कोल्ड. व्हाट डू यू थिंक इज द कॉमन कॉजेटिव एजेंट जो हमको कॉमन कोल्ड होता है, एंड व्हाई आर वी पुटिंग इट अंडर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स? Why are we putting common cold under respiratory disorders? बोल. The lungs are affected. Lungs are affected? नहीं, lungs affect नहीं होते हैं common cold में. क्या affect होता है? The nose is affected. Yes, only the upper respiratory tract is affected. Nasal nose में blockage होगा. Okay, so the cause, ये जो हमारा common cold रहता है, the cause is rhinovirus. इट्स अ वायरल डिजीज, इसीलिए इसमें हम एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं. जब हमको सिर्फ कोल्ड हुआ है तब एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं. दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नॉट द लंग्स. इसमें हम लंग्स का कुछ भी इन्फ्लेमेशन नहीं देखेंगे. सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द कंडक्टिंग पाथवे जो है वो अफेक्ट होता है.
एंड डेफिनेटली वी नो ये स्प्रेड होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। घर में किसी एक को रहा तो उसके क्लोज कांटेक्ट में जो रह रहा है उसको हो सकता है थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। When this person is sneezing तो होती ही है कोल्ड में, और द पर्सन इज कफिंग, तब ये ड्रॉपलेट स्प्रेड हो सकता है। तो अब ये ड्रॉपलेट स्प्रेड डायरेक्ट भी हो सकता है, ये किसी ने डायरेक्टली इनहेल किया, या ये ड्रॉपलेट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन ने जहाँ पे स्नीज किया है वहाँ पे ड्रॉपलेट छोड़ा, अगर टेबल पे, डोर पे, एंड अगर दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल ने वो डोर को हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद नोज पे हाथ लगाया तो स्प्रेड हो सकता है। सो थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड, डोर के नॉब्स, कप्स, यूटेंसिल्स, टेबल, घर पे टीवी का रिमोट, कुछ भी। Symptoms will include nasal blockage, nasal discharge from the nose, it is inflammation of the nose, headache, tiredness. It may be accompanied with sore throat, with cough, may be accompanied with these two also. The duration which it lasts for is only 3 to 7 days. 3-4 days तक चलती है ये, अगर नॉर्मली सिर्फ कोल्ड हुआ है, इसके साथ फीवर वीवर नहीं है तो। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? Okay. What treatment do we take for this? बोलो। अभी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स काम कर सकते हैं। हम यूजुअली सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। व्हाट डज सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट मीन? मतलब Means जो we take symptoms this है as उसकी दवा देते सर्दी है तो कोल्ड का लेंगे। Yes. Decongestants. What are decongestants? हैं। वो नेजल पैसेज को ओपन Nasal blockage कम करना। Yes. Vaporizers. Usually we take symptomatic treatment and rest. तो उससे ठीक हो जाना चाहिए कॉमन कोल्ड। चलो, what is this COVID disease? What is it affecting? हाँ बोलो। हमें पूछना था कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं समझा। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन मतलब जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं। नेजल ब्लॉकेज है, नोज से डिस्चार्ज हो रहा है। नेजल ब्लॉकेज की वजह से डिफ़िकल्टी है अंदर एयर लेने में, तो हम ये पाथवे को क्लियर करेंगे। तो ये जो नेजल का ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ द म्यूकस, बिकॉज देर इज कंजेशन इन दिस पाथवे, हम डीकंजेस्टेंट्स यूज़ करेंगे, वेपराइजर्स यूज़ करेंगे। सो सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट मीन्स जो सिम्टम है उसका ट्रीटमेंट देंगे। ओके। जैसे फीवर का सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट क्या होगा कि आप पैरासीटामोल दे दो। जब तक हमको कॉज पता नहीं रहता है हम नॉर्मल पैरासीटामोल देते हैं, बिकॉज ये सिम्टम है, ये उसका ट्रीटमेंट है। दैट इज सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। बट अगर फीवर कम नहीं हो रहा है तो हमको उसका कॉज पता करना पड़ता है। फिर हम करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट, हम करते हैं डेंगू का टेस्ट, हम करते हैं चिकनगुनिया का टेस्ट, टाइफॉइड का टेस्ट, विच एवर बैक्टीरिया इज डिटेक्टेड, जो भी कॉज पता चलता है उस प्रोलॉन्ग फीवर का, देन वी गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस।
राइट. सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज सिंपली जो सिम्टम है उसको ट्रीटमेंट दो. Okay, ma'am. चलो. यस, दिस इज फ्रॉम ऑल ऑफ यू. कोविड में क्या अफेक्ट होता है? व्हाट हैव यू हर्ड विद कोविड? It affects the Lungs are immunity. affected. Yes, it Respiratory tract. impacts the lungs. ये बार के वेरिएंट में नहीं, बट लास्ट वेव में यू ऑल मस्ट बी नोइंग वी हैड सीन कि सबका सीटी स्कैन कर रहे थे लंग्स का, बिकॉज लंग्स वर इम्पैक्टेड. सो इट इम्पैक्ट्स द लंग्स एंड इट डैमेजेस द alveoli. ओके, क्या सिम्टम्स थे इससे रिलेटेड? चलो बोलो. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड. Difficulty breathing, Yes, difficulty in breathing. tiredness, Low O2 levels. Yes, difficulty in breathing. Fever. Low oxygen levels. Coughing. Coughing. Yes. Loss of taste. Yes. Loss of taste है, बट ये अपने रेस्पिरेटरी से रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है लिखेंगे. फीवर. and when that O2 suddenly drops, they feel nauseatic and unconscious. Yes. Sudden decrease in O2 levels. मैम चेस्ट पेन हाँ, चेस्ट पेन भी. वो ऑक्सीमीटर से हम लोग क्या चेक कर रहे थे? कोविड पेशेंट का ऑक्सीमीटर से क्या चेक SpO2. करते हैं? यस, PO2 saturation. Oxygen saturation. ऑक्सीजन सैचुरेशन. सो हम क्या बोलते थे कि कितना है तो नॉर्मल है, ठीक है. 95. 96 above. हाँ. Above 97. एटलीस्ट 90 अबव हम लोग बोलते थे कि रहना चाहिए. 90 से बिलो जा रहा है तो वी नीड टू कॉल द डॉक्टर. सो हम ऑक्सीजन लेवल्स को कंटिन्यूसली चेक कर रहे थे बिकॉज लंग्स आर अफेक्टेड, देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. अगर सडनली ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो गए तो फिर टाइम लग जाता है टू गो टू द हॉस्पिटल. और फिर क्या लग रहा था ऐसे पेशेंट्स को जिसमें सडन ऑक्सीजन लेवल्स लो हो जा रहे थे? Oxygen cylinder. यस, वेंटिलेटर्स. सो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड देखी थी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की. राइट. सो ऑल दिस इज रिलेटेड टू कोविड, नॉट इन एनी ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स, बट करंट टॉपिक पे ये भी आता है कि दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. difficulty in breathing, ventilators, artificial oxygen is administered to the patients. Now again, इसमें भी ऐसा नहीं था कि सारे पेशेंट्स को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लग रहा था और ये सब लग रहा था. ओके, सो डिपेंड्स ऑन उसकी कितनी सिवियरिटी है और बॉडी की कितनी इम्यूनिटी है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. सो वी सॉ कि ओल्डर इंडिविजुअल्स को ज़्यादा हाई रिस्क पे रखा गया था, राइट, बिकॉज ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होती जाती है. So older individuals were at a higher risk. So again, जो हम symptoms लिखते हैं for any of the disease, ऐसा नहीं है कि सबको वो symptoms दिखाई देंगे, but these are the symptoms which can be seen. चलो, अब मुझे बोलो what is hypoxia? The term hypoxia means And the decrease Low in O2 levels similar. O2 level. yes, oxygen deficiency in the tissues or the cells of the body is hypoxia. Then what is anoxia? Because ये term भी दिखेगा आपको. What is anoxia? No oxygen. Yes, no oxygen at all. This is a very harmful condition. It is life threatening. पर्सन की लाइफ जा सकती है अगर बॉडी में एनोक्सिया का स्टेट आने लगा तो. सो एनोक्सिया का स्टेट कब आएगा? चालू होता है हाइपोक्सिया से, बिकॉज डायरेक्टली तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऐसी स्टेट नहीं आएगी. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से एनोक्सिया वाली स्टेट आ सकती है. सो हाइपोक्सिया वाली स्टेट पे ही
ये अगर मैनिफेस्ट हो गया और ट्रीटमेंट मिल गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे दिया, तो एनोक्सिया वाली स्टेट नहीं आती है. कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स की जिनकी डेथ हुई, उनकी इसकी वजह से भी हुई कि लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशंस ऑक्सीमीटर से मॉनिटर नहीं हुए थे घर पे, एंड सडनली एनोक्सिया वाला स्टेट आ गया और डेथ हो गई पेशेंट की. So anoxic condition is a life-threatening condition because the body requires oxygen. At least the vital organs should be provided with oxygen. Okay, what is asphyxia? Now another term which you will see in your MCQs. What is asphyxia? Bol. Again, Body parts को oxygen supply. Decrease in oxygen and unconsciousness. yes, it is a state of suffocation, state of restlessness. Due to high carbon dioxide content in the blood, due to increased carbon dioxide in blood, or reduced oxygen in blood. कोई भी condition हो. That is asphyxia. What is pleurisy? इसका आंसर मिलेगा with what is pleura. What is pleura? Lungs. Outer covering of the Outer Yes. covering. Yes. Outer covering. So pleurisy का definition with pleura only, inflammation of covering of the lung, that is the pleura, is pleurisy, जिसकी वजह से भी severe chest pain होता है. Patient complains of severe chest pain because of this inflammation of the pleura. What is laryngitis? inflammation of larynx. Correct. So inflammation of larynx. larynx के अंदर क्या रहता है? Vocal cords. हाँ. Vocal cords. So inflammation of vocal cords, inflammation of larynx, ये laryngitis में आएंगे. Again the cause will be bacterial, will be viral. Sore throat, hoarseness of voice, because vocal cords भी affect होंगे. Again cough, mucus buildup. All this will be seen. Treatment will be antibiotics and it will be symptomatic, जिसके लिए हम warm saline gargles करते हैं. So that throat को थोड़ा relief मिले. So treatment again will be antibiotics and it will be symptomatic. Symptomatic relief के लिए जो जो कर सकते हैं वो करेंगे. Rest will also be over here. Means the person should speak less. तो ये inflammation of the vocal cords थोड़ा जल्दी heal होता है. चलो, here we complete with the disorders of the respiratory system, but I do want to discuss few other things. What is cough? What is coughing?
जब हमको कफ नहीं है बट नॉर्मली खाना खाते खाते हमको कभी खांसी आ जाती है, व्हाट इज दैट कफ? मतलब यू डोंट हैव एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यू डोंट हैव एनीथिंग, बट खाना खाते खाते कभी खांसी आ जाती है ना, व्हाट इज दैट मैम कफ? को वो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं Food करने के लिए फोर्स देता है। यस, say करेक्ट करेक्ट. Force, cuff is forcible expiration. इतना ही MCQ आप लोगों के लिए आता है. Cuff is forcible expiration. It is a reflex action. बॉडी खुद से करती है ये एक्शन. मतलब यू डू नॉट डू इट, हम ऐसा नहीं कर सकते. हम जो करते हैं वो हम एक्टिंग में करते हैं. लाइक इफ आई आस्क यू टू कफ नाउ, आप कफ करके दिखा सकते हो, बट दैट इज नॉट फोर्सफुल एक्सपिरेशन. दिस एक्चुअल कफ जो हम नहीं करते हैं और खुद से आ जाता है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, इन रिस्पॉन्स, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज इन रिस्पॉन्स टू एनी फॉरेन बॉडी or a drop of water. मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ पानी भी अगर चला गया, या एक पार्टिकल ऑफ फूड गया, वन ड्रॉप ऑफ वाटर, वन पार्टिकल ऑफ फूड, इफ इट एंटर्स द विंड पाइप, if it enters the windpipe, body is going to forcefully expire to remove it. So forceful expiration to remove the particle. आपको सिर्फ MCQ आएगा कि कफ क्या है. इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन to remove any foreign particle or a particle of food, a drop of water in the windpipe. उसको बॉडी कफिंग करके फोर्सफुली बाहर निकाल देगी विंडपाइप से. चलो नेक्स्ट, व्हाट इज स्नीजिंग? nasal passage में अगर कुछ चलेगा तो उसको एक्सपेल करने के लिए Yes, yes. Again, it is forceful expiration. यही इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके लिए कि ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन है कि इंस्पिरेशन है. इट इज अगेन फोर्सफुल एक्सपिरेशन. वी आर गोइंग टू थ्रो समथिंग आउट. क्या थ्रो करेंगे अभी बात करेंगे हम. अगेन इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन. It's not in our control. When the body is sneezing, we have to sneeze. Air is exhaled out through nose and mouth. एंड इनफैक्ट इस एयर के साथ थोड़ा सा वाटर भी बाहर आता है. इफ़ यू विल सी नाउ, अभी सोच के देखो, जब हम स्नीज करते हैं इट्स नॉट ड्राई, some amount of water or that nasal mucus also comes out. Stimulation. अब क्या स्टिम्युलेट करता है ये स्नीजिंग को? Why is the body sneezing? Can be because of any irritation to nasal mucosa by an allergen. अब फिर से ये एलर्जेंस सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं. I may be allergic to something. If I come in contact with that thing, I sneeze. You may be allergic to something else.
So because of this allergen, the nasal mucosa is stimulated, irritation होता है nasal mucosa का, and we sneeze. Forceful expiration of this allergen जो nose में गया है अंदर. चल, what is hiccuping? मैम वो When the फ्रेमी diaphragm shifts a little bit. स्टिमुलस मिलता है. हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं हिकअप्स को? हिचकी. Yes. So this hiccuping is noisy inspiration. Because noise आता है जब हिचकी आती है, but it is noisy inspiration. Inspiration के टाइम पे वो आवाज़ आता है. जब हम एयर छोड़ते हैं तब नहीं आता है, इसीलिए दो हिचकी के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है. हिचकी ऐसे एकदम कंटिन्यूस नहीं रहती है कि एक बार आपने हिचकी ली फिर थोड़ा गैप फिर हिचकी फिर गैप, ऐसे चलता है वो. इट इज़ नॉइजी इंस्पिरेशन बिकॉज ऑफ irregular or spasmodic means irregular contractions of diaphragm muscles. At irregular intervals. क्योंकि हमारे नॉर्मल इंस्पिरेशन में डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट दिस इज इरेग्युलर स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम मसल्स एट इरेग्युलर इंटरवल्स, जिसकी वजह से नॉइजी इंस्पिरेशन होगा. नाउ क्यों हो रहा है ऐसा स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, क्यों हो रहा है? The cause for this spasmodic contraction will be irritation of the sensory nerve of digestive system. Which is the sensory nerve of digestive system? Or nerve, that cranial nerve that innervates the internal organs? Vagus nerve. Yes. Tenth cranial. It is 10th cranial, correct. Vagus nerve. So क्या होता है, स्टमक और डायफ्राम एक दूसरे से टच करते रहते हैं हिचकी के टाइम पे. डायफ्राम के बहुत ही इरेग्युलर कॉन्ट्रैक्शंस चल रहे हैं. डायफ्राम के नीचे ही एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें एब्डोमिन है, स्टमक है. स्टमक और डायफ्राम एक दूसरे से टच करते रहते हैं और वो नॉइजी इंस्पिरेशन होता रहता है. तो हम पानी क्यों पीते हैं? व्हाई आर वी ड्रिंकिंग वाटर? हिचकी बंद करने के लिए. हाउ डू वी क्योर इट? जस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. तो हिचकी बंद हो जाती है. क्या करता है ये पानी ताकि हिचकी बंद हो जाए? बिकॉज हम ये इरिटेशन को एकदम से तो नहीं बंद कर सकते हैं. ओके, जो भी रीजन की वजह से वो वेगस नर्व थोड़ा सा इरिटेट हुई है वो थोड़ा सा चलता है, बट हम हिचकी को बंद कर लेते हैं. वो हम कैसे करते हैं? बोलो. See, when we drink water, तो ये पानी कहाँ जाएगा? एब्डोमेन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है. वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो स्टमक कहाँ पुश होगा? Upwards. अपवर्ड्स. वॉल्यूम इंक्रीज होने पे कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा. Yes. ओके, स्टमक विल गो डाउनवर्ड्स. Stomach will be pushed down because the volume has increased. स्टमक को नीचे भेजा तो डायफ्राम और स्टमक एक दूसरे से टकराते नहीं है. डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शंस चलेंगे, बट बहुत सारा पानी पिया है तो स्टमक नीचे जाता है.
बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पानी पिया बट हिचकी बंद नहीं हो रही है, होता है कि नहीं होता है? तो फिर और पानी पीना पड़ता है, और फिर वो टाइम पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ये वेगस नर्व का इरिटेशन या जो भी रीज़न है जिसकी वजह से दैट नर्व इज़ गेटिंग इरिटेटेड, वो ठीक हो जाए तो हिचकी बंद हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पानी पिया फिर भी हिचकी बंद नहीं हो रही है, तो और पानी पीते हैं हम, राइट। तो वो 5-10 मिनट लग जाते हैं कभी कभी हिचकी बंद होने में, इमीडिएटली नहीं बंद होती है। सो फॉर यू अगेन, हिकअपिंग इज नॉइजी इंस्पिरेशन। अगेन ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो बॉडी ने किया है बिकॉज ऑफ इरिटेशन टू द वेगस नर्व। इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। हिचकी आने पे हम रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल कि अभी हमारी आवाज़ नहीं आए, वो हिचकी नहीं आए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पानी पीना पड़ता है इमीडिएटली अगर आपको हिचकी बंद करनी है। वो पानी से स्टमक नीचे पुश होता है, तो स्टमक और डायफ्राम एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। मैम यस। मैम ये इरिटेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व की वजह से नहीं होगा क्या? मतलब वो डायफ्राम को कंट्रोल करती है तो? नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ द नर्व ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। मैम तो स्टिमुलस तो इसको जाएगा ना पर? स्टिमुलस मतलब अब्डोमेन को जाएगा, यस। हाँ हाँ, पर हिचकी आती है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। ओके, और मे बी द वेगस इज रिलेटेड विद डायफ्राम ओके मैम। internally when it is going. So ये डायफ्राम जब the only objective of drinking water is डायफ्राम जब irregularly contract कर रहा है, spasmodic contractions हो रहे हैं डायफ्राम के, तो स्टमक और डायफ्राम एक दूसरे को टच करते हैं, सो वो नॉइजी इंस्पिरेशन होता है। सो इफ़ वी पुश द स्टमक डाउनवर्ड्स, अब स्टमक को नीचे पुश करने का हमारे पास ये है कि हम पानी पी सकते हैं। पानी पिया तो वो वेट की वजह से स्टमक नीचे पुश होगा, तो डायफ्राम के साथ वो टकराएगा नहीं, तो वो नॉइजी आवाज़ नहीं आएगी। राइट? Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, sometimes it's told to eat saggery during hiccups. Why, ma'am? व्हाट समटाइम्स? मैम वो गुड़ खाने के लिए कहते हैं मैम हिकअप्स के टाइम पे कभी कभी, तो क्यों? गुड़ खाने के लिए? यस मैम। मे बी दैट मस्ट ऑल्सो बी रिलेटेड कि स्टमक में कुछ ना कुछ डालना है, अदरवाइज गुड़ का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। नो, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट होगा कुछ, बिकॉज पहले के साइंटिफिक लोग, उनको इतना नहीं पता रहता था, बट उनको ये पता रहता था कि पानी डाला तो स्टमक नीचे जाएगा, वेट बढ़ेगा उसका। गुड़ के साथ आई डोंट नो एनी रिलेशनशिप। ओके मैम। ओके, व्हाट इज यॉर्निंग? ओके, पहले तो ये बताओ कि इंस्पिरेशन होगा या एक्सपिरेशन होगा? Inspiration. नो, इट इज प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन। अब ये सोच के देखो कि हम कब यॉन करते हैं। वाई डू वी यूजुअली When we यॉन? feel sleepy. जब हम When we feel sleepy. हाँ, when the body is tired. Okay, when the body is tired. Now when do you feel the body will feel tired? Ma'am, when brain gets less oxygen. Yes, जब ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन टेंशन हो गया है ब्लड का। The body has worked whole day. अब ब्रेन भी थक गया है, देयर इज लो ऑक्सीजन टेंशन इन द ब्लड, द ब्रेन, द वाइटल ऑर्गन्स आर नॉट यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन प्रॉपरली, दे आर ऑल्सो टायर्ड। दिस इज द टाइम जब हमको कंटिन्यूसली यॉर्निंग आती है। कभी कभी हम अगर बहुत टायर्ड रहते हैं तो वी नोटिस कि 10 मिनट्स में 2-3 बार हम यॉन कर रहे हैं। दैट इज द टाइम वी थिंक कि अब सोना ही पड़ेगा, राइट। सो यॉर्निंग इज प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन जिसमें बॉडी opens the mouth wide. Body opens the mouth wide so that more air can be taken inside.
more air is inhaled. Again, it's a reflex action जो खुद से होता है. Ma'am, yawning is also contagious, we say. Yawning is contagious in the thing कि अभी आप लोग yawning लिख रहे हो तो किसी ने yawn किया क्या? Yes, ma'am, I did. Yes, वो भी होता है. Like when one person yawns, you also tend to yawn. ऐसा होता है, right? But उसका ऐसा कोई scientific reason नहीं है. So when we are writing about yawning, you are speaking about yawning, तब भी ऐसा होता है. Like I didn't yawn now, but होता है ऐसा. I have noticed. So all these are reflex actions, but yawning is prolonged inspiration. ये MCQ आपके लिए. Coughing is what? Inspiration or expiration? Expiration. Expiration. Sneezing is what? Expiration. Hiccuping is what? Inspiration. Expiration. Hiccuping, noisy inspiration. Oh, sorry. तो अब याद रखो, हिकपिंग और यॉर्निंग ये दोनों इंस्पिरेशन में आएंगे. कफिंग और स्नीजिंग ये दोनों एक्सपिरेशन में आएंगे. इतना तो याद ही रखो जोड़ी बना के. अब हिकपिंग यू नो, नॉइज आती है जब हिचकी आती है, सो इट इज नॉइजी इंस्पिरेशन. ऑलराइट. व्हाट इज क्राइंग? अभी क्राइंग के टाइम पे देखा है ऐसे आवाज़ आती है जब हम बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो कैसी आवाज़ आती है? कौन इनैक्ट करके दिखाएगा वो आवाज़? चलो अवनीश. मैम मतलब रोते वक्त ऐसा ऐसा आता. नहीं, और बेटर कौन करेगा? अपना नोज तो ब्लॉक हो जाता है, सो वी टेंड टू ब्रीद इन फोर्सफुली. ऐसे करते हैं हम, ऐसे ब्रीद इन करते हैं फोर्सफुली, और उसके बाद कैसा आवाज आता है? चलो कौन करेगा? ओके, आवाज आता है कि नहीं आता है वो बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो फोर्सफुल इंस्पिरेशन, बिकॉज अपना नेजल ब्लॉकेज हो जाता है तो हम फोर्सफुली एयर इंस्पायर करते हैं. फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दिस इज व्हेन यू हैव क्राइड अ लॉट. ओके, ऐसे अगर 2 मिनट रोए हैं तो ऐसा नहीं होता है. व्हेन रियली समथिंग बैड हैज हैपेंड एंड वी आर क्राइंग, तब होगा ये. सो फोर्सफुल इंस्पिरेशन फॉलोड बाय many short convulsive expirations. वो जो आवाज आती है, ओके, दैट इज convulsive expiration. सो क्राइंग में हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं और फिर वो छोटे छोटे जो आवाज आते हैं ऐसे, दैट इज convulsive expiration. Accompanied by, what will crying be accompanied with? Tears. Yes, and Running nose. okay, running nose. Red eyes. Yes, okay, red eyes. And what? Headache. Facial expressions which we are not controlling. See, we are speaking of a state जब सच में हमारा something bad has happened. Okay, let us not speak of a bad situation, but we are speaking of something bad has happened and we are really crying. सच में बहुत बुरा हुआ है किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, so we are crying. So it is that state when we are not controlling our facial expressions also,
एंड टीयर्स, रनी नोज, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, बिकॉज हमको ब्रीथ तो करना है एंड नेजल ब्लॉकेज है तो हम बीच बीच में फोर्सफुली ऐसे इंस्पायर करते हैं. So again for you these MCQs. चलो, यहाँ किसी को कोई डाउट है बेटा तो बोलो, अदरवाइज हम रुकते हैं यहाँ पे. कल हम पूरा ये पार्ट डिसऑर्डर्स वाला पूरा पार्ट रिवाइज करके टुमारो यू विल हैव क्लास एट 8:45 ओनली. ओके, टुमारो दे विल नॉट बी ऑफ. फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. So tomorrow we will do this part and we will do that first paragraph of this chapter, respiratory organs in other animals of the animal kingdom. Yes, मैम क्लास लेट नहीं हो सकती थोड़ी? we will follow the same time of 8:45. You are saying this because tomorrow is Sunday. Is it because Yeah, of ma'am. that? Because otherwise B1 batch will have this time only of 8:45. यस मैम. So what time you all want? Ma'am, the time is okay. यस मैम, द टाइम इज ओके. Tanish, we can do half an hour late for you. तब तक उठ जाना. नहीं मैम, ठीक this है is मैम. only okay, 8:45. हाँ, आई थिंक फिनिश कर लो ना. 8:45 से 10 o'clock तक फिनिश कर लो. आफ्टर दैट यू आर फ्री फॉर योर अदर क्लासेस, फॉर योर अदर वर्क. यस मैम, ओके. ओके, 8:45 से 9:45 तक फिनिश कर लो, 10 o'clock तक मैक्सिमम, एंड देन यू आर फ्री. मैम चलो, योर पर्सनल डाउट्स ऑल्सो बेटा, ये पूरे चैप्टर में वट एवर थिंग यू